Okay, so continuing on. क्रिश ये वाला क्वेश्चन भी तो किया था ना? हाँ सर, लेकिन सर प्रॉब्लम हुआ है, बता दीजिएगा वापस। जैसे लेट्स से दिस वाज द कर्व, ठीक है? हाँ सर। तो अल्फा बीटा को फिर ज्वाइन कर दो। लेट्स से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा? अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, और ये वाला पॉइंट आएगा बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा, ठीक है? नाउ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 विल बी इसका मिड पॉइंट, ठीक है? एंड एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये जो वैल्यू है एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे होगा दिस वुड बी एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बट ये जो एंटिटी है एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा बाई 2, ये तो y वैल्यूज का मिड पॉइंट होगा। So what we do is we join the alpha and beta with the help of a straight line, and इसका जो midpoint होगा this would be f of alpha plus f of beta by 2, and because this point lies above the f of alpha वाला point, ये वाला point तो curve के ऊपर है, so f of alpha plus f of beta by 2 will be greater than f of alpha plus beta by 2. That is how it would be solved. ये था लॉजिक उसका, ठीक है ना? सेम सब इक्वल कर दीजिए। अब सेम सब चीज में वही चीज लगाना है, ठीक है? सब में यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। सर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोले थे? इसके पहले वाले में पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला। सर 4 पे 4 में सी और डी को ये साइन गलत हो गया यार। क्वेश्चन में ऑप्शन सी एंड डी बोथ वुड बी लेस देन, तब फॉल्स का बी आंसर होगा, ठीक है? सो दिस वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन द क्वेश्चन, सो आई विल टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर इट, एंड इस क्वेश्चन के लिए सबको +5 मिल जाएगा। Those who have attempted उसको +5, and those who haven't attempted उसको उनको +4, so that's okay. I'll do that. Okay. So 5 हो गया, then 6 भी same ही है. Even 6 we had discussed in the class, so I'm skipping 6 as well. अच्छा 7. Now come to this. How many of you were able to solve this paragraph? सर हो गया था? हाँ सर, ये वाला पूरा हो गया। Yes, sir. Good. Others? बाकी सबका? No, sir. Krish, Harshit, everyone else? तुम लोग से हुआ है सर क्या? नहीं हुआ था। नहीं हुआ। सर नहीं हुआ। Okay, so this would be done in this way. Let the equation this have two roots in common, and the third roots of them are alpha and beta. So what we do is we start by assuming that the two common roots in this are a and b. तो पहला क्यूबिक का रूट्स क्या हो जाएगा? a b अल्फा, एंड दूसरे क्यूबिक का रूट्स हो जाएगा a b बीटा। यहां तक तो क्लियर है सबको? हाँ। ये तो क्लियर है ना सबको? Now writing the relations, what would be sum of the roots in the first quadratic, first cubic? A plus b plus alpha is -2, and sum of the roots in the second quadratic, a plus b plus beta, ये आएगा -1. Next product, sum of the roots taken 2 at a time, ab plus b alpha plus a alpha, ये आएगा -p, सॉरी p, एंड यहाँ पे क्या आएगा? ab plus b alpha plus sorry a b beta, a beta is also equal to p.
Now, so since both of them are equal to P, ये तो equate हो गया. तो AB plus alpha times A plus B is equal to AB plus beta times A plus B. तो AB कट गया. Now from here what would we get? alpha minus beta into a plus b. That A plus B must be equal to 0. Why must A plus B be equal to 0? Because alpha and beta are not equal. Question में ये given है, alpha and beta are not equal. So if alpha and beta are not equal, then A plus B must be 0. And if A plus B is 0, so first equation say what do we get? Alpha minus is 2. minus 2 and beta is minus 1. बस that is what was needed to be done. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. 5. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 हो गया. सर ये तो fx का कोई यूज नहीं था. fx का यूज बाकी दो क्वेश्चन में होगा ना. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx, तो इसमें ये निकालना होगा. तो लिमिट ऑफ अपने को ये चाहिए. So this becomes limit of x tending to 0 minus e to the power x ln of 1 plus x into mod of alpha plus beta. तो mod of alpha plus beta 3 आ जाएगा. ठीक है ना. And इसको change करके we can write it as e to the power x by log of 1 plus x to the base 3. नंबर और बेस इंटरचेंज कर दिया. log goes to the डिनोमिनेटर में चला गया. Now what will be the value of x by log of 1 plus x to the base 3? ये हो जाएगा e to the power ln 3. So and e to the power ln 3 will come out to be 3. log of 1 plus x by x is a standard limit और उसमें बेस e चाहिए. यहाँ पे बेस 3 है. So we will get a log 3 ऊपर में. I hope everyone is clear with this. Yes, sir. तो ये आ गया ऐसे that the value of limit 0 tending 0 minus fx is equal to 3. तो इसका आंसर हो जाएगा B. And then same way में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 of a plus b निकालना है. तो a plus b के लिए you have to find out the right hand limit. तो a का वैल्यू तो since the function is continuous, a का वैल्यू तो what can we say would be a का वैल्यू 3 because continuous है, तो it must be equal to the left hand limit. और अब राइट हैंड लिमिट निकाल लो. ठीक है, इसका राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 b टाइम्स log of e to the power x square प्लस अल्फा बीटा हो गया 2 into root x divided by tan root x. ठीक है, अब इसमें tan root x को we can always replace as root x. Remember sin and tan from the denominator remove करते हैं. तो ये हो गया. अब लापेटा लगा दो. So this would come out to be 1 by e to the power x square plus 2 root x into the derivative of the denominator. तो e power x square का derivative आ जाएगा e to the power x square into 2x plus 2 root x का आ जाएगा root x whole divided by 1 by 2 root x. अब इसको सिंप्लीफाई करके लिमिट बैठा देना. Sir, half. क्या हाफ? Root x का. 2 root x है यार ऊपर में. हाफ और 2 कट जाएगा. अच्छा. ठीक है ना. अब इसको ही बस सिंप्लीफाई कर देना. x को 0 डाल दो
रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन में ये 0 प्लग इन कर देना। दिस रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स मल्टीप्लाई करके रूट एक्स कैंसिल कर दो, एंड देन सब जगह पे 0 डाल दो, तो ये 0 हो गया। आई थिंक ये वाला वैल्यू 1 आ जाएगा क्या, मे बी 1 आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। नहीं, 2 भी तो है यहाँ पे, 3/2 आएगा, जो भी आएगा देख लेना। अब तो हो ही गया। सो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। आई थिंक 2b इक्वल टू, यहाँ से 2b इक्वल टू 3 आ जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 2b आएगा, एंड कंटिन्यूटी के लिए 2b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे a और b बैठा दो, you will get the required answer as 11। नहीं 9 आएगा, 9 11 नहीं, 9। But is everyone clear with the working of this comprehension? Yes, sir. Yes, sir. बाकी Yes, सबको भी sir. क्लियर है? Yes, sir. Okay. Then we go to the last part, which is the integer type questions. If the curve this pass to the point -1, 0 and have a common tangent at this point, then what will be the value of mod of a plus b plus c? इससे आसान सवाल संभव ही नहीं है। -1, 0 प्लग इन करोगे, a का वैल्यू आ गया, b और c का एक इक्वेशन आ गया, फिर दोनों का dy by dx इक्वेट कर दो, b और c का दूसरा इक्वेशन आ गया, यू विल गेट b and c। सर वो भी नहीं करना होगा इसमें, तो b + c = 0 आ जाएगा कंडीशन प्लग इन करने से। और ही बढ़िया, कुछ करना ही नहीं है फिर तो। बड़ा क्वेश्चन बढ़िया है। b + c डायरेक्टली 0 हो गया, मॉड a बचा, एंड a का वैल्यू यहाँ से आ ही जाएगा, a का वैल्यू विल बी 1 -1। बढ़िया है, मस्त, फ्री का मार्क्स। Okay, next one, this fx is this local has a local minima at log t square to the base 3, comma f of log t square to the base 3, and a local maxima at log t to the base 3, f of log t to the base 3. If r, which is 5/2, comma f of 5/2 is a point of inflection, then find the value of log t cubed to the base 3. So how do we go about doing this? सर सम ऑफ Sir, रूट F निकालना है, double f' का f' का सम ऑफ रूट्स निकालना है। हाँ, काइंड ऑफ f' का सम ऑफ रूट्स निकालना है, सही बात है। वो 3 log t हो जाएगा, यहाँ पे log t + 2 log t is basically 3 log t। हाँ, और और a वेरिएबल रहेगा, उसको f'' इक्वल्स टू 0 पुट करके निकाल दीजिए। हाँ, yes, that is what we have to do. So the question would be solved in this way. पहले तो fx का f' किया, so 6x + 2ax + b, फिर इसका f" कर दिया, so that would be 6x², so 12x + 2a। ठीक है, now this is a point of inflection, मतलब f" 5/2 will be 0, so using this a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, how much would a come out to be? 5/2 30 -15। ठीक है, a will come out to be -15। अब सबको ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एंड उसके बाद ये we come back to this quadratic, so इस quadratic का वैल्यू क्या हो गया, 6x² - 30x + b। so what are we looking for is the roots, sum of the roots, तो इसका sum of the roots कितना हो गया, 5 5. that is the answer। ठीक है, sum of the roots निकालना था खाली। if you are able to interpret this as sum of the roots, then the question would be very simple। ये चीज रियलाइज होना चाहिए कि this is twice of log of t to the base 3,
and when you add this and this, it will effectively become 3 log t to the base 3, which is this value. So we are asked to find out the sum of the roots, and sum of the roots will be minus b by a. Okay, ये वाला then L1 and L2 are sides to length of two variable squares S1 and S2 respectively, such that L1 is L2 plus L2 cube plus 6. Then the rate of change of the area of S2 with respect to the rate of change of S1 when L2 is 1. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ से रेट ऑफ चेंज निकाल लो, dl1 by dl2 ऐसे करके. ठीक है, हाँ सर. and फिर you have to find the rate of change of the area of S2 with respect to the area of S1. तो S2 का एरिया क्या होगा? L2 square, and S1 का एरिया होगा L1 square. L1 की जगह पे ये वाला सब्स्टिट्यूट कर दो, L2 plus L2 3 plus 6 whole square. सर हम लोग ds2 by ds1 डायरेक्टली नहीं कर सकते. ds2 यार वो s2 के टर्म्स में नहीं है ना, एक्सप्रेशन तो L1 और L2 के टर्म्स में है ना, तो डेरिवेटिव तो L1 और L2 का लगाना पड़ेगा. मतलब उसके बाद का सब्स्टिट्यूट हाँ कर मतलब देंगे. तो यही तो करना है, ds by L2 and ds1 by L2, और फिर दोनों को डिवाइड कर दो. मतलब फाइंड आउट ds by dl2, ds2 by dl2 and ds1 by dl2, और फिर निकाल लो. हाँ बोलो. तो इसमें ये जो इक्वेशन है L1 का, उसमें L1 और L2 का dl1 by d3 और उन दोनों क्या बोलते हैं कंडीशन में ला लेंगे, जैसे dl1 by dl2 will come out as 4 dl2 by dt. हाँ तो वैसे ही सब्स्टिट्यूट करके हो जाएगा. जैसे भी हो जाए, जैसे भी कर लो. एंड वंस यू आर डन विद दैट, तो इसका फाइनल आंसर लैम्डा का वैल्यू आएगा 5 अगेन. ठीक है. हाँ सर. तो बस ds2 by dl2 और ds1 by dl2 निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो, डिवाइड कर दो बेसिकली दोनों को. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. सर इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर 2 होना चाहिए इसका आंसर. हाँ सर 2 आना चाहिए. Yes, हाँ सर मेरा भी 2 आया. सर ये 5 दे रखा आंसर की. 5 is given as the answer. मेरा 5 ही आया. क्योंकि 5 ही होगा. अच्छा पहले तो इसकी कहानी पे आते हैं. How should we draw 1 plus x? तो y equal to x shifted 1 unit upwards. तो ये ऐसा आ जाएगा. And how should we draw 1 minus x? That would be y equal to minus x shifted 1 unit upwards. So इसका ग्राफ आ जाएगा something like this. I hope everyone is okay with this. yes, यस सर. हाँ x equal to 0 पे दोनों 1 है. हाँ तो ठीक है. इफेक्टिवली अपने को तो इसका मैक्स चाहिए, तो मैक्स फंक्शन में नीचे वाला पार्ट हट जाएगा. This would be the part remaining, right? So if we draw it freshly, the graph of this would be something like this. ठीक है ना. एंड अब tan x बनाना है 0 to 2 pi. So 0 to 2 pi tan 0. Tan x आएगा ऐसे. So this would be the graph between 0 to pi by 2.
फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से सॉरी इसको ले लो 3 पाई बाई 2. Let's take this as 3 pi by 2. So between this part, the graph of log would be something like this. अच्छा 3 pi by 2 से फिर अगला आएगा 2 pi. Just a minute. 2 इंटरसेक्शन हुआ। और 0 दो ही तो है। सर 2 ही होगा। सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हुआ। 0 to 2 pi will be the graph like this. ये ऐसे आएगा। 0 to 2 pi तो यहीं रुक जाएगा। 2 ही होगा क्या? हाँ, 2 ही हाँ होगा। yes sir. उसका आंसर 5 दिया हुआ है। दो ही तो है। Yes sir. 5 is given. एक मिनट, हाँ, I'll just check this thing out. Answer key that I sent. Questions. तो इसका यही होगा। फिर इसमें आंसर की मैं कैसे कर दूंगा? यप, मतलब तो यही रहे। the answer is 2. Correct है, 2 ही होगा। We'll have 2 solutions. Okay. इसका भी बोनस। हाँ हाँ, ठीक है। So that would be this all the questions. I hope सबको सारा questions clear है। Sir, can you please explain number 19 once? Number 19. Sir, not 18, 18. Sorry, 18. ये वाला? Yes sir. Sir, over here option C is not correct. सर ए और सी दोनों। यस सर Yes sir, even Yes I sir. got A होना and C चाहिए। both the answers. I marked C and the answer is given as A. यस सर इवन आई। C भी आएगा। Just let me check this. नहीं चाहिए। एक फिर से। This is differentiation application. Increasing, decreasing, maximum T. अरे यार, shit. हाँ, C में भी there is a printing mistake. ये arrow less than होगा। यस सर। This arrow will be less than. Okay, not an issue. ठीक है। Okay, apart from this, is there any doubts in any of the questions? No sir. Okay, and I hope all of you would have seen the integration ka lecture. Yeah, you have postponed it to watch it after the test. sir, देख लिए। मजा आया? हाँ सर। हाँ sir, इतना बड़ा आंसर था sir। हाँ, you will get used to it. एक एक पन्ने का solution और 2-2 लाइन जितना लंबा आंसर तो बहुत ही कॉमन है यार इसमें। ठीक है। In fact, there are some forms like the form that I discussed जो मैं इसका question solve नहीं करा था। I said कि ये बस बहुत ही rare forms है। Like for example, वो quadratic by linear root quadratic. ठीक है। तो देखिए। हाँ तो अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर तो मजा ही आ जाएगा एकदम। That would be a 2-3 page long solution and the answer would not even fit in 2-3 lines. ठीक
Okay, so you have to get used to it, and that is one of the reasons. Because of this the chances of making silly mistakes increases. कहीं पे कोई माइनस छूट जाएगा, कहीं पे कोई प्लस रह जाएगा, कहीं पे कोई मल्टीप्लाइड वैल्यू छूट जाएगा, बिकॉज a इंटू इतना बड़ा इंटीग्रेशन था, अब इंटीग्रेशन तो कर दिया बट वो a इंटू सब में करना रह गया. So that makes integration a bit more difficult because of the solution being so tedious and so lengthy. The chances of making silly mistakes increases exponentially. Okay, so whenever you are solving questions on integration, just be a bit more careful. And if you feel that you have an integration question which is not related to any standard forms that we have discussed, then if the options are given, options differentiate kar lo rather than trying to integrate the expression. Okay, na? Differentiate the options rather than integrating the question. That would be easier if the given question is a form which we have not discussed, or it is not one of the standard forms that we have discussed. Okay, so all those things are there. So we'll be discussing more. Lecture 2 May we will have 2 more methods of integration by partial fractions, and then the best one, integration by parts, right? So we'll continue with that. Integration mein I think it will take us 4 lectures to complete integration. So ek to ho gaya, there will be 3 more lectures to complete integration. Uske baad we'll move into the second one, definite integration. Okay, home assignment 1. I think home assignment 1 se sara question roughly ho hi gaya hoga. There shouldn't be much doubts, right? Almost sara were very basic questions, which was a practice set. सर एक नहीं हो पाया था, वो मैंने आपको भेजा था. वो तो ठीक है, वो फॉर्म आएगा, दैट स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा आगे, कोई इशू नहीं है. बाकी जितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन था सब स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, मेजॉरिटी क्वेश्चंस f' by fx वाला फॉर्म का था. तो आई होप सबसे हो ही गया होगा, राइट? सर अभी किया नहीं है. अच्छा ठीक है, कर लेना, कोई इशू नहीं है. देयर इज जस्ट ओनली सारा क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, सो इट शुड बी क्वाइट सिंपल. Okay then, so with that we'll end this meeting for today, right? I'll see you next week. Next week may we'll have integration lecture 2, and we'll discuss things related to lecture 2, both lecture 1 and lecture 2 in the next Zoom session. Okay, Zoom session pe we'll have solve some questions on integration as well. हाँ बोल कृष. सर आपने एक तो क्वेश्चन कराया था क्लास 9 में से 25 नंबर, उसमें इंटीग्रेशन x dx ऑलरेडी दिया हुआ था. हाँ. और नीचे में क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक था, तो वहां पे हम z² आप बोले थे वो करने रिप्लेस, तो हाँ. बिना उसके पहले t करके फिर z के, तो आंसर डिफरेंट आया उससे. क्या किया हम डायरेक्टली z सब्स्टिट्यूट नहीं किए, पहले t सब्स्टिट्यूट किए x को 1/t, हाँ, के बाद z² सब्स्टिट्यूट किए. पर वो क्यों किया, मतलब दैट वाज नॉट नीडेड. मैं तो बोला कि उसमें जो फर्स्ट स्टेप अपने करते हैं वो करते हैं कि अपने एक टी ऊपर आ जाए, पर अगर x ऑलरेडी दिया हुआ है तो फर्स्ट स्टेप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. तो यू आर डूइंग द फर्स्ट स्टेप, इन दैट केस यू आर जस्ट कॉम्प्लिकेटिंग इट फर्दर. मतलब क्वेश्चन को एक स्टेप एक्चुअली पीछे लेके जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट फॉरवर्ड. When x is already given and you substitute x equal to 1/t, so you are actually taking the question one step back. तेरा dx by quadratic root quadratic का फॉर्म आ जाएगा. हाँ सर, ठीक है, तो वो तो एक स्टेप पीछे जाना हो गया ना, समझ गया? हाँ इसलिए ऐसा हो रहा है. ओके सर. हाँ. ओके देन, हाँ बोलो अर्पणा. सर क्यूबिक का जो केस 1 था ना, उसमें d लेस देन 0 था. हाँ, सर उसमें d लेस देन 0 सिर्फ होगा या फिर तो d लेस देन इक्वल टू 0? यार देख, होगा तो सिर्फ लेस देन 0, क्योंकि अपने को सेकंड क्वाड्रेटिक का रूट्स नेगेटिव करना है. जो क्वाड्रेटिक आया ना उसका रूट्स इमेजिनरी करना है कि मतलब उसका मेन थिंग इज, जो अपने क्यूबिक ड्रॉ कर रहे हैं ना, द क्यूबिक शुड नॉट टर्न. ठीक है,
अगर इक्वल टू 0 भी करते हैं तो इसका मतलब क्या आएगा, dy by dx का रूट आ गया तो द क्यूबिक विल टर्न, एंड dy by dx का रूट आ भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, मतलब dy by dx का रूट नहीं आना चाहिए, आई एम सॉरी, dy by dx का रूट नहीं आना चाहिए। dy by dx का रूट आने का मतलब क्या है कि एक टर्निंग पॉइंट आ गया, बट केस 1 का बेसिक क्राइटेरिया इज टर्निंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। वी वांट द क्यूबिक टू स्टे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, आइदर वे इट मस्ट नॉट हैव अ सर टर्निंग पॉइंट। लेकिन dy by dx अगर एक बार 0 हो गया तो मतलब ये पॉसिबल तो हो सकता है ना, क्योंकि डबल डैश करने पे भी 0 अगर हो गया तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। हाँ तो वो वन रियल रूट आ जाएगा ना, तो वो जो अल्फा है ना, मतलब दैट पॉइंट विल बी अ रिपीटेड रूट, थ्राइस रिपीटेड रूट, जैसे एक्स क्यूब में होता है। हाँ ठीक है, एक्स क्यूब को अपने सब थ्राइस में ना होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मानते हैं ना, हाँ है ना, एक्स क्यूब को अपने Yes, sir. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मानते हैं, और वो क्यों करते हैं, बिकॉज इफ dy by dx becomes equal to 0 at only one instant, f dash x is 0 सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए, तो that is considered as a part of strictly monotonically increasing और monotonically decreasing only। ठीक है, तो वो सारा चीज तो we have already discussed, तो cubics will also Sir, follow the same thing। सर एक डाउट है सर, शेयर करने पर शेयर नहीं हो रहा। एक मिनट, शायद मैं वो स्क्रीन शेयरिंग नहीं किया क्या, हाँ अब कर। सर इसमें d लेस देन 0 लगाएंगे, सिर्फ d लेस देन 0 लगाएंगे ना, कि इक्वल टू b? इज 1 1 नहीं, खाली लेस देन 0 लगाएंगे, इक्वल टू क्यों लगाएंगे? हाँ सर, हम लेस देन सिर्फ लगाए तो मेरा आंसर 13 आया, लेकिन इसमें आंसर सोल्यूशन जो दिया था उसमें d लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया और फिर आंसर 15 आ गया। नहीं 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 नहीं, इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है सर। सिर्फ लेस देन ही होगा, बिकॉज वी वांट दैट द क्यूबिक शुड स्टे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑलवेज। आपने क्लास में जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, सब में तो d लेस देन 0 ही किया है, इक्वल टू तो कभी लगाया ही नहीं। ठीक है, हाँ इक्वल टू का अगर इक्वल टू होता है इक्वल टू का स्पेशल केस है कि अगर इफ इट इज ओनली बिकमिंग 0 मोमेंटरली, और रादर उस पॉइंट पे f डैश के साथ साथ f डबल डैश भी 0 है, देन वो केस बनता है, बट वी डोंट नीड टू गो इनटू दोस थिंग्स। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में भी तू ये चीज चेक कर सकती है कि जिस पॉइंट पे dy by dx 0 हो रहा है उस पॉइंट पे d2y by dx2 भी 0 है क्या? यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट थिंग आउट। ठीक है, फिर पर वो सर क्या इसमें तो p और q के टर्म्स में दिया हुआ है तो वो तो चेक नहीं हो पाएगा। हाँ, तो अगर वो चेक नहीं होगा तो अपने फिर सीधा ओनली लेस देन 0 ही कंसीडर करेंगे, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है सर। यो, सर नेक्स्ट वीक टेस्ट है क्या? हाँ नेक्स्ट वीक वेक्टर्स एंड 3D, और डू यू गाइस नीड अ ब्रेक नेक्स्ट वीक छोड़ के फिर उसके अगले वीक? सर उसके अगले वीक। हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक आई वोंट हैव द टेस्ट, विल हैव द टेस्ट नेक्स्ट वीक देन विल हैव द इंटीग्रेशन का लेक्चर्स अप, एंड इन द नेक्स्ट जूम सेशन विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, स्पेशली बाई पार्ट्स का ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द जूम सेशन, राइट? सो आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। ठीक है, और नेक्स्ट वीक संडे अपना रेगुलर टाइमिंग, ठीक है, बैक टू रेगुलर टाइमिंग 11 AM। ओके देन, चलो बाय बाय एवरीवन। ओके सर। बाय बाय सर। बाय। बाय सर।